अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक दूसरा एक्सरसाइज है दैट्स रिलेट टू पैरेलल लाइंस. ओके, सो पैरेलल लाइंस आपके डिफरेंट हो सकते हैं. दीज टू लाइंस आर योर पैरेलल लाइंस. ओके, similarly these two lines are your parallel lines. Okay, so यहाँ पे हमने and the angle between two parallel line is 0 degree. Okay, so यहाँ पे देख लो तो यहाँ पे भी एंगल आपका 0 होगा, यहाँ पे भी एंगल आपका 0 होगा, यहाँ पे भी एंगल आपका 0 होगा. But if one parallel line is given to you in this direction and second parallel line is given to you in this direction, then the angle between these two lines is equal to 180 degree. Okay, you should remember this. The angle between these two is equal to 180 degree. Now the question is how how the angle between these two parallel lines is equal to 180 degree. तो इसको हम ग्राफ से थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं. ग्राफ में हमारे पास क्या होता है, एक y एक्सिस होता है और एक x एक्सिस होता है. ओके, सो जब भी आपने एंगल्स को फाइंड करने तो इसी तरह ग्राफ ड्रा करना है. दिस विल बी माई x एक्सिस, this will be my negative x axis, this will be my y axis, and this will be my negative y axis. ओके, अब क्या करना है, अब मैंने इस पैरेलल लाइंस को उठा के यहाँ पे दिस इज इन दिस डायरेक्शन. ओके, तो आपने इसको इस तरह रखना है यहाँ पे. ओके, एंड दिस इज आल्सो हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने एक्स एक्सिस पे लेना है और डायरेक्शन आपका टुवर्ड द राइट साइड है. सो दैट्स व्हाई I am taking this side, not this one. Okay, the second arrow is in the is toward the left side, so इसको मैं यहाँ पे इस तरह लिख लेता हूँ. Okay, okay, now you need to find the angle between these two arrow, the red one. Okay, तो arrow के angle क्या है, this is the angle between these two arrow which is equal to 180 degree. Okay, so this and this, the angle between these two is equal to 180 degree. Okay, got it? Yes. Acha, if the second if these two lines are parallel to each other, okay, and these two lines are in the same direction, okay, दोनों का डायरेक्शन सेम है. सो अगर इसी तरह ये दो पैरेलल लाइंस आ जाए, सो द एंगल बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइंस विल बी इक्वल टू 0 डिग्री. ओके, सो हाउ इट्स विल बी इक्वल टू 0 डिग्री, तो इसको ये आपके यहाँ पे आ जाएगा और दूसरा भी आपका यहाँ पे आ रहा है, इसके ऊपर आ रहा है. सो यहाँ पे देख लो तो आपका एंगल 0 आ रहा है. ओके, दोनों पैरेलल लाइंस में जो एंगल्स आपका आ रहे हैं वो 0 आ रहे हैं. if the second line is like this, तो फिर आपका 90 डिग्री एंगल आएगा, एंगल बिटवीन these two perpendicular line. this is known as perpendicular line. if it is like this, तो फिर भी आपका some sort of angle होगा. if it is like this, then also there is some sort of angle present in between these two arrows. if it is given to you like this, then there is also some sort of angle present in between these two arrows. But if these two arrows are exactly parallel to each other, then the angle between these two arrows will be equal to 0 degree, as you can see here. Okay, angle आपका कितना है, 0 आ गया. But if these two arrows are opposite to each other like this, okay, तो फिर आपका एंगल कितना आएगा, 180 डिग्री हो जाएगा. Okay, so this will be 180 degree angle. If that, so simply if the direction is same, angle will be equal to 0. if direction is opposite, then the angle will be equal to 180 degree. Okay, so ये parallel lines से related थोड़ा सा था.
अच्छा, यहाँ पे अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स आ जाते हैं कि एज यू कैन सी ओवर हियर ए बी एंड सी डी लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ओके, एंड पी क्यू line cross these two parallel lines. So if PQ line cross these two parallel lines, तो फिर क्या होगा, there will be some sort of angles. So here you will get angle A, this angle B, C and D. This will be X, Y, W and Z. अच्छा, D and Z are your corresponding angles. इनको हम corresponding angles कहते हैं. And these two angle will be equal to each other, okay. Your D angle will be equal to Z angle and this is known as the corresponding angles. अच्छा, इसी तरह आपका C and Y is also your corresponding angles. इसी तरह A and W is also your corresponding angles. Similarly, B and X is also your corresponding angles, and these angles will be equal to each other. So simply your corresponding angle will always be equal to each other, okay. There is also second type of angles that is known as the alternate angle. अच्छा, यहाँ पे देख लो तो your C angle and W angle are the alternate angle, okay. Similarly, your D angle and X angle are your alternate angle, okay. और ये इक्वल नहीं होंगे एक दूसरे के, okay. इसी तरह आपका B angle and Z angle are your alternate angle. इसी तरह A and X are your alternate angles, okay. अच्छा, there is also another type of angle that is the interior angle. So यहाँ पे देख लो, C and X are your interior angles, okay, X side पे हो. D and W are also your interior angles, okay. D and W are your interior angles. इसी तरह C and X are your interior angle. There is also another type of angle that is known as the exterior angle. So B and Y are your exterior angle. A and Z are your also your exterior angle, okay. You got the concept behind this type of angles, or I should repeat it again? I got it. Okay, so this question in figure AB and CD. अच्छा, ये corresponding angles या जो अभी हमने इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल्स या अल्टरनेट एंगल्स जो हमने अभी पढ़े हैं, तो ये आपके कब एग्जिस्ट करेंगे? ये जब आपके दोनों लाइंस पैरेलल हों, ओके, और उन पैरेलल लाइंस को एक लाइन क्रॉस कर लें, ओके. सो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गया, इंटीरियर एक्सटीरियर ये एंगल एग्जिस्ट करेंगे फिर. अच्छा, यहाँ पे लेट्स क्वेश्चन नंबर practice now, okay. In the figure AB and CD, so AB and CD are parallel to each other. अच्छा, यहाँ पे दो लाइंस क्रॉस कर रहे हैं, इनको P, Q and और S दो लाइंस इनको क्रॉस कर रहे हैं, पैरेलल लाइंस को. So one pair of equal corresponding angle, we need to list down one pair of equal corresponding angle. तो corresponding angle यहाँ पे क्या होगा, कौन कौन से होंगे? What do you think? D and M. Where is B? B and M? No, D and M. D. Okay, D and M. These are the corresponding angles. I think these are the interior angles. Oh. Yes, मैं थोड़ा सा आपको वो कर लेता हूँ. So ये एंगल
और ये एंगल, ये आपके इंटीरियर एंगल होंगे। ये एंगल और ये एंगल आपके अल्टरनेट एंगल होंगे। दीज आर योर एक्सटीरियर एंगल। इन्होंने आपके बुक में उन्होंने नहीं कहा, लेकिन इसको हम एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। अच्छा, और कौन सा रह गया? करस्पॉन्डिंग एंगल। यस, करस्पॉन्डिंग एंगल आपको ये हो जाएगा फिर। सो ये दोनों आपके करस्पॉन्डिंग, इसी तरह इस साइड पे ये भी करस्पॉन्डिंग हो गए। ओके ओके, सो यहाँ पे देख दो, वन पेयर ऑफ इक्वल करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहाँ पे तो मेरे पास बहुत सारे पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। Okay. यस, यहाँ पे A and M, B and N, E and I, F and J. F and J. Okay. Okay, so these are your corresponding angles. Okay. ये भी हो सकते हैं H and L, G and K are also your corresponding angles. D and P is also your corresponding angle. C and O is also your corresponding angle. Or corresponding angles that will always be equal to each other. Okay. बाकी इतने like for the other angles it is not necessary that angle will be equal to each other or not, but for corresponding angles will always be equal to each other. Okay, so simple if you find angle A, so आपके पास automatically angle MB आ जाएगा, that will be equal to angle A. Okay, part 2, one pair of equal alternate angles. So alternate angles कौन कौन से हो जाएंगे यहाँ पे? E and N. D and N. B Okay. and N, C and M. C and M. Good. H and J. H and J. Good. G and I. Good. G and I. Good. And then there's K and I, J and L, M and O, N Yeah. and P, A and C, Yes. B and D, E and G, F and E. अच्छा, इसको हम एक दूसरा नाम भी देते हैं। लास्ट टाइम इन फ्यू क्लासेस पहले हमने आई थिंक डिस्कस किया था। दिस विल आल्सो बी नोन एज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। I and K, E and G, A and C, B and D. These are also known as vertically opposite angles. Okay. D and M, C and N, H and I, G and J. That's it. Okay. अच्छा, आपकी जो जो आपके वो होते हैं, क्या कहते हैं उसको, जो आपके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं एक दूसरे के। ओके, योर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स will always be equal to each other. Okay, your corresponding angles will also be equal to each other. Your alternate angle will also be equal to each other. अल्टरनेट एंगल आपके इंटीरियर अल्टरनेट एंगल होते हैं इसमें फिर, और एक आपके एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल होते हैं, तो वो इक्वल होते हैं। सही है। Yes. अच्छा, जो आपका अभी आप कह रही थी कि अल्टरनेट एंगल्स आपके ये हो जाएंगे। ओके, अल्टरनेट एंगल विल बी इक्वल टू दिस D and N. D and N, yes, ये आपके अल्टरनेट एंगल होंगे। बट दीज टू अल्टरनेट एंगल्स को फिर हम फर्दर डिवाइड करते हैं टू टाइप्स में। The first one is the interior alternate angle. The second one is the exterior alternate angle.
अच्छा, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल इज योर डी एंड एन. D and B are not your alternate angle, okay? A and C is also not your alternate angles, okay? You should remember these. B and D are your vertically opposite angle. A and C is also your vertically opposite angle. F and H, E and G are also your vertically opposite angle. इसी तरह ये भी आपके vertically opposite angles होंगे और ये vertically opposite angles equal होंगे एक दूसरे के, okay? They should always be equal to each other. Like your angle A and angle C are the vertical opposite angles, and these angle will be equal to each other. Yeah, angle A will be equal to angle C. Acha, D and N is your alternate angle. C and M is your alternate angle, and these alternates angle are the interior alternate angle. Okay, ये आपके inside आ रहे हैं, तो these alternate angles are your interior alternate angle. Okay. अच्छा, अब A and O is also your alternate angle, okay? इसी तरह B and P is also your alternate angle. So these alternate angles is the exterior alternate angle, okay? ये बाहर आ रहे हैं, so that's why these alternate angle is known as exterior alternate angle. And your alternate angle will always be equal to each other, okay? Like your D angle will be equal to angle N, your C angle will be equal to angle M. इसी तरह बाकी भी होंगे. अच्छा, there is a huge difference between interior angles and interior alternate angle, okay? A, D and N, C and M is your interior alternate angle, but D and M, C and N is your interior angles, okay? इनको हम interior angles कहते हैं, C and M, C and N. इसी तरह H and I, G and J, ये भी आपके interior angles होंगे, okay? कोई confusion तो नहीं है? नहीं. Okay, good. अच्छा, one pair of interior angles which are supplementary, okay? So your interior angle will always be supplementary, okay? Supplementary means के the sum of the angles is equal to 180 degree. The second type is the complementary. Complementary में the sum of the angles is equal to 360 degree. In supplementary the sum of angle is equal to 180 degree. तो यहाँ पे देख लो. So your H angle and I angle are your interior angle. इनको हम interior angle कहते हैं. Okay. अच्छा, यहाँ पे देख लो तो ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ओके? सो ये एंगल्स आपके कुछ इस तरह बनेंगे कि ओके, this angle and this angle is your interior angle, okay? As I said, your H angle, या इसको हम कर लेते हैं, your H angle and your I angle is your interior angle, and these are the supplementary angle, okay? ये supplementary angle होंगे. किस तरह supplementary angle होंगे? अगर इस एंगल को मैं यहाँ से उठा लूँ, इस एंगल में यहाँ से उठा लूँ, यहाँ पे ले आऊँ, सो ये आपका 180 डिग्री बन रहा है. सो द समेशन ऑफ दीज टू एंगल H and I एंगल इज 180 डिग्री, ओके? ये देख लो, द समेशन ऑफ दीज टू एंगल इज 180 डिग्री. So these H and I is your interior angle, and these and these are the supplementary angle, okay? Supplementary angles इसी तरह है, क्योंकि दोनों को ऐड कर लो, you will get 180 डिग्री. सप्लीमेंट्री एंगल आपके कब होंगे? जब आप एंगल्स को ऐड कर लो एंड यू गेट 180 डिग्री, सो वो एंगल्स आपके सप्लीमेंट्री एंगल होंगे. इफ़ यू गेट 360 डिग्री तो फिर आपके वो कम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे, ओके? कम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी आपका सर्कल कंप्लीट हो जाएगा. सो इसको आप इस तरह रिमेंबर कर लिया करो, कंप्लीट कम्प्लीमेंट्री एंगल. कंप्लीट सर्कल मीन्स कि आपके 360 डिग्री.
ये एंगल आपका 360 डिग्री होता है, विच इज़ ए कंप्लीट सर्कल. दिस इज 360 डिग्री. ओके, सो दिस इज कंप्लीट सर्कल. सो इसको आप इस तरह याद कर लिया करो. यू शुड रिमेंबर इट लाइक दिस, कि दिस इज complementary. तो complementary में complete 360 degree. The second one is the supplementary, which is 180 degree. Okay. अच्छा, अब यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन है, that is the is angle C is equal to angle G? Explain your answer. So angle C is equal to angle G. Okay. Yes, these two angles. Oh no. What do you think, Anya? ये इक्वल होंगे कि नहीं? Yes. No. Wait. Yes, I think. How? Yes. Because they're alternate and that's also vertically opposite. No, angle G and angle C. Oh, sorry. I thought E. Yes, this is angle. Yes. No, not angle G and C. Why? Because they're not alternate and they're not vertically opposite. So these are the corresponding angle. Yeah. Few minutes पहले मैंने आपको बताया कि you will always see the corresponding angles if two lines are parallel to each other. So यहाँ पे देख लो, these two are the corresponding angles. Okay, sorry, angle E and angle I is your corresponding angles. अच्छा, ये दो lines parallel हैं और this line PQ line will cross the parallel lines. Okay, so that's why the angle between PQ and this parallel lines, and here the angle between PQ and this parallel lines are your corresponding angles. यहाँ पे देख लो, so the PQ line and this one line AB cross the two lines which is PQ and RS. Okay, AB line cross the two lines that is PQ and RS, but PQ line PQ that is not parallel to RS line. Okay, दोनों lines parallel नहीं है, so that's why इनको आप corresponding angle नहीं कह सकती यहाँ पे. Okay, जिस तरह यहाँ पे मैं कहता हूँ कि angle E and angle I are the corresponding angles and that they will be equal to each other. Why they will be equal to each other? Because AB line is parallel to CD line and only PQ line cross this. But in this case, angle G and angle C, AB line cross these two lines and these two lines are not parallel to each other. So that's why it will not be equal to each other. Okay, and you cannot call it as a corresponding angle. Okay, अगर यहाँ से आप देख लो इसको, तो ये आपका ऊपर दोनों सेम साइड पे है, तो आपने ये नहीं कहना कि दिस इज द corresponding angle कब होंगे? if PQ is parallel to RS. Okay, so ये इसी पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने ये क्वेश्चन दिया था आपको, that you should remember this, that if AB line is parallel to CD line and one line cross these two parallel lines, then your angle E will be equal to angle I and these two angle will be your corresponding angles. Okay, otherwise आपके नहीं होंगे. अगर ये CD line इस तरह होता, let's say CD line मेरा इस तरह है, तो आपका एंगल I क्या हो जाएगा? एंगल I आपका ये हो जाएगा, this will be your angle I. Then your angle I will not be equal to angle E and you cannot call it as a corresponding angles. Okay, क्यों? Because because line AB is not parallel to CD. This is your D now. Okay, ये दोनों lines parallel नहीं है, so that's why इनको आप corresponding angles नहीं कह सकती. But now AB line is parallel to CD line, so you can call it as a corresponding angle. E and I is your corresponding angles, and these two
will be equal to each other. Okay, these two angle will be equal to each other. Okay, तो यहाँ पे आपका आंसर 9 होगा. क्यों 9 होगा वो आपने इस तरह एक्सप्लेन करना है. Got it? Yes. Okay. अच्छा, अब यहाँ पे देख लो. सो इन द फिगर AB एंड CD, AB पैरेलल टू CD. सो ये सिंबल इस तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं मैथ्स में. सो AB इज पैरेलल टू CD एंड PQ लाइन क्रॉस दीज टू पैरेलल लाइंस. फाइंड द वैल्यू ऑफ A, B, C एंड D. सो आपका A क्या हो जाएगा? दीज टू आर द करस्पॉन्डिंग एंगल्स. सो A क्या हो जाएगा? A विल बी इक्वल टू A is equals to 48. Yeah, A will be equal to 48 because A and 48 angle are the corresponding angles. So वो आपके होंगे इक्वल. ओके, मैंने आपसे पहले कहा कि आपका अल्टरनेट एंगल्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे. सही. यस. अच्छा, फाइंड एंगल B. तो एंगल B क्या होगा? 61. या 61. एंड दीज टू एंगल्स आर योर What is it called? Wait, I forgot what it's called. Okay, take It's time. the A thing. I forgot its name. Vertically opposite Yeah, line. these are the vertically opposite line, vertically opposite angles. Sorry. अच्छा, and these two angle will be equal to each other. Okay, good. अच्छा, angle C. Angle C. There is no corresponding or alternate. Corresponding to what? Oh wait, can we do interior angle? Interior angle will not be equal to will not be equal to each other. Is this angle equal to this angle? Yes. Okay, your C angle is equal to unknown angle, which is represented by U alphabet. So can you find the unknown angle? We have to add B. Yes. If you add B with U, so that will be equal to The unknown. no. Yeah, total angle. What do you think that? If 180. Yeah, U plus 61. Oh, Is it right? yes. Okay, so your U will be equal to 180 minus 61. So 119 I will see. Yes, 119. So आपका that will be equal to 119. Okay, C will be equal to U. Okay. तो इस तरह भी आप फाइंड कर सकते हो.
Okay. Okay. What about angle D? Angle D is corresponding to B, so 61. Yes, good. So that will be equal to 61. Or you can find it like this. ये देख लो. So this is 180. ये देख हाफ सर्कल आपका बन रहा है. जब भी आपका इस तरह हाफ सर्कल बन जाए, so that will be equal to 180 degree. Okay. Complete circle will be equal to 360 degree. So यहाँ पे हाफ सर्कल बना, so it means कि C plus D will be equal to 180. So your D will be equal to 180 minus C, and C is 119. So your D will be equal to, ये आपका 61 आ जाएगा. Okay. So क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को करते हैं, उसके बाद क्लास को एंड अप कर लेते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 1. इन द फॉलोइंग फिगर ए बी एंड्स इज पैरेलल टू सी डी. ओके, ये देख लो यहाँ पे उन्होंने करस्पॉन्डिंग, और जब भी आपने करस्पॉन्डिंग, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट करस्पॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, then the two lines must be parallel to each other. Okay, यहाँ पे देख लो AB is parallel to CD. So find the value of A, B, C and D. So your A will be equal to 54. good. Your B will be equal to B will be equal to your D will C. be equal. B is equals to C and D. B is equal to C. Good. And D. And that's equal No, to, wait, no. Yeah, C is equals to D. yes. Okay. So एक एंगल फाइंड कर लो तो सारे आंसर आ जाएंगे. Oh wait, no, never mind. See, I don't know. कोई 180 का थोड़ा सा कुछ कर लो. 180 का कुछ भी नहीं बन रहा. 180 डिग्री के थ्रू आप फाइंड नहीं कर सकती. टेक टाइम. Something plus 106 equals 180. Yes, something is D. Okay. Yeah. So this is okay. D plus 106. That's equal to 180. So your D will be equal to 180 minus 106. So your D will be equal to 74. Okay. Okay, so D will be equal to C, will be equal to B. Okay, question number 2. या आप इस तरह के लो, क्वेश्चन नंबर 2 को होमवर्क ले लो. दिस विल बी योर होमवर्क. ओके, टेक टाइम, सोच लो एंड फाइंड द आंसर ऑफ दिस टू. ओके, ये भी इजी है. यहाँ पे पैरेलल लाइंस सबसे पहले आपने देखने हैं, तो ए बी इज पैरेलल टू सी डी and AF line cross these two parallel lines, or EA also cross these two parallel lines. Okay, तो ये आपका ओके, आप खुद ही कर लो इसको. लेट्स सी आप क्या बनाती हो इनका, इन पार्ट्स का. टुमारो आई विल चेक योर होमवर्क. ओके, टुमारो वी विल आस्क. अच्छा, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ कंपोजिट सॉलिड्स. ओके, पहले हमने सबसे पहले हमने प्रिज्म को डिस्कस किया था. ओके, उसके बाद पिरामिड को हमने डिस्कस किया था.
उसके बाद सिलेंडर को डिस्कस किया था, फिर कॉन को डिस्कस किया था, उसके बाद स्फेयर को डिस्कस किया था। तो अब कंपोजिट सॉलिड्स में हमारे पास क्या होंगे, उन्होंने इस तरह किया होगा कि स्फेयर और कॉन को मिक्स किया होगा। सर सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या था? सिलेंडर का सरफेस एरिया नहीं, सिलेंडर का वॉल्यूम जो था दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर का सरफेस एरिया नहीं होता। सिलेंडर का सरफेस एरिया होता है वो आप सिलेंडर का सरफेस एरिया इन्होंने आपके कोर्स में इंक्लूड नहीं है, यहाँ पे इन्होंने नहीं दिया। इन्होंने सिलेंडर को भी इतना वो एक्सप्लेन नहीं किया। उन्होंने सिलेंडर सिर्फ कौन को एक्सप्लेन करने के लिए कौन की जो वॉल्यूम है उस फार्मूला को डिराइव करने के लिए इन्होंने सिलेंडर को एज ए बेस लिए हैं। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का क्या फार्मूला है, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। और सिलेंडर का शेप किस तरह होता है, सिलेंडर का शेप कुछ इस तरह होता है। कौन भी सिलेंडर की तरह होता है बट उसमें एपेक्स होता है लाइक दिस। और कौन का था 2/3 पाई आर स्क्वायर 2/3। वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ द कॉन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर। 2/3 था। 1/3 यस, और 1/3। इसका पाई आर स्क्वायर एच, और इसका सरफेस एरिया था पाई आर एल प्लस पाई आर एच। यस, पाई आर एल प्लस पाई आर एच या पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। सबर ये फार्मूलाज मैं आपके लिए लिख लेता पाई हूँ आर एल यहाँ प्लस पे, पाई आर स्क्वायर। तो ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये फार्मूलाज जो हैं इन्हीं फार्मूलाज को हम अब यहाँ कम्प्लेक्स शेप में हम यूज़ करेंगे। ओके, सो फार्मूलाज को सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने प्रिज्म को डिस्कस किया था। सो द वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म दैट बेस इज, एरिया इनटू हाइट। यस गुड, बेस एरिया इनटू हाइट। अच्छा, इसके बाद हमारे पास फार्मूला था कि वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड 1/3 बेस इनटू बेस एरिया इनटू हाइट। 1/3 बेस एरिया इनटू हाइट। अच्छा, इसके बाद हमारे पास फार्मूला था सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड वो क्या था, इसमें हमने इस तरह करना है कि जितने भी सरफेसेस होते हैं पिरामिड के वो ट्राइंगुलर होते हैं, सही है। तो आपने ट्राइंगल्स का एरिया का जो फार्मूला है वो आपने लेना है। पिरामिड आपका किस तरह होता है, पिरामिड आपका कुछ ये इस शेप का होता है, इस तरह ये ऊपर होगा, इस तरह ये भी आ जाएगा, ये भी इस तरह आ जाएगा, इस तरह का शेप होता है। तो इनको अगर आप खोल लो तो ये आपका शेप कुछ इस तरह बन जाएगा। तो इसका ये सरफेस कितना हो जाएगा, सरफेस एरिया, ये ट्राइंगल है आपका, एंड दिस इज द स्लैंट हाइट। ओके, दिस इज द स्लैंट हाइट विच इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एल। तो ये आपका हो जाएगा 1/2 BH, BL in this case, let's say this is B, this length is B, ये इनटू स्लाइड हाइट। या प्लस दिस, ये एरिया कितना होगा वो भी आपका 1/2 BL हो जाएगा, प्लस दिस ये कितना होगा, दैट्स विल बी आल्सो 1/2 BL। सबके डिफरेंट BL है। डिफरेंट नहीं है, सेम है, ये आपका सेम है, ये आपका स्क्वायर होता है। अच्छा, ये तो आपके सारे सरफेसेस हो गए, एक सरफेस रहता है, वो कौन सा होगा,
और फिर ये सरफेस एरिया। नहीं, ये तो आपके सरफेस एरिया, सारे सरफेसेस कवर हो गए एक्सेप्ट वन सरफेस। वो सरफेस कौन सा है रह गया इसमें, बीच में जो है, या बीच में है, वो क्या है आपका स्क्वायर है। सो स्क्वायर का एरिया क्या होगा, बी स्क्वायर। सो दिस इज द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द सरफेस एरिया ऑफ द पिरामिड। बस सारे एरिया को ऐड करते हैं। या ये ट्राइंगल है तो ट्राइंगल का एरिया आपने लेना है, तो वो सरफेस है ना, जितने सरफेसेस आपको नज़र आ रहे हैं वो सारे आपने लेने हैं। तो यहाँ पे पिरामिड और प्रिज्म के सरफेस एरिया में फर्क तो नहीं है ना? है फ़र्क। प्रिज्म में हम क्या करते प्रिज्म में हैं, प्रिज्म में आपका एपेक्स नहीं होता। प्रिज्म आपका कुछ इस तरह होगा, ऊपर भी आपका इस तरह एक ट्राइंगल या एक स्क्वायर बनेगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ प्रिंसिपल तो सेम ही है ना? या सेम ही है। प्रिज्म का भी बस वही है कि हम सारी साइड ऐड करेंगे। या सरफेस एरिया, मगर 1/2 की जगह के वन साइड ऐड, वन साइड, वन साइड, वन साइड, वन साइड। या ये आपका क्या है, दिस इज एक्चुअली रेक्टेंगल आपका बन रहा है यहाँ पे। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल का फार्मूला आपने इस सरफेस के लिए लेना है, इसी तरह बाकी सरफेस के लिए भी। सो लेट्स से दिस इज एल एंड दिस इज बी। सो ये आपका क्या हो जाएगा, बी एल हो जाएगा। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टू साइड्स। इसी तरह इस साइड का भी बी एल हो जाएगा, उस साइड का भी एल हो जाएगा, इस साइड का भी बी एल हो जाएगा। बेस और ऊपर का क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा। सरफेस एरिया मीन्स के यू नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ ऑल द सरफेसेस। ये सेम प्रिंसिपल सारे शेप्स में अप्लाई होगा। अब डिपेंड करता है कि आपको एरिया का फार्मूला आना चाहिए। लाइक एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होगा, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होगा, एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या होगा। तो ये फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सरफेस एरिया ऑफ द पिरामिड। अब आ जाते हैं वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, एज आई ऑलरेडी डिस्कस, दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ द कोन 1/3 पाई स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। गुड। सरफेस एरिया ऑफ द कोन पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एच। दिस इज द कर्व सरफेस एरिया। ओके, अच्छा, इसके बाद हमारे पास था स्फेयर। वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर दैट्स इक्वल टू क्या था, भूल गए हो? 4/3 पाई आर क्यूब था, सही है। 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा, सरफेस 4 पाई आर स्क्वायर। दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, ये सारे फार्मूलाज थे इसी चैप्टर में, जो अभी हमारा एक चैप्टर है। इस चैप्टर में जितने भी फार्मूलाज अभी तक हमने पढ़े वो सारे यही फार्मूलाज हैं। इनका भी हम आगे क्वेश्चन में वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। सॉरी, फोन कर रहा ले लिया। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं। सो ओके, दिस क्वेश्चन, okay, the question is, a solid consists of a cone. Okay, it consists of a cone and a hemisphere which share a common base.
The solid has a height of 50 centimeter and the hemisphere has a diameter of 30 centimeter. Find the volume, the total surface area of the solid. Okay, first of all we will need to find the volume. तो वॉल्यूम आपका क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम विल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर. सो योर वॉल्यूम विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कॉन का फार्मूला क्या था? वॉल्यूम ऑफ द कॉन का था पाई आर स्क्वायर h 1/3. और वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर का फार्मूला क्या था? हेमिस्फीयर यस, half of surface area of sphere. surface area volume 4/3 pi r cube is the volume of the sphere and volume of the hemisphere is 2/3 pi r cube. एक्चुअली आपका फार्मूला जो है वो 4/3 pi r cube है, बट हाफ ऑफ दिस वॉल्यूम इज 2/3 pi r cube. Okay, ये this 2 will cancel out by this 2. Okay, so in this case what we will need this. Okay, ये रेडियस दोनों के लिए रेडियस सेम होगा. ओके, दोनों केसेस में आपका रेडियस सेम होगा. यहाँ पे रेडियस ओके, हाइट मुझे ये चाहिए होगा, दिस हाइट फॉर द कॉन के लिए मुझे ये हाइट चाहिए. सो आई विल नीड टू फाइंड दिस हाइट. ओके, अच्छा ये भी इन्होंने आपको गिवन है 30 सेंटीमीटर, उन्होंने आपको डायमीटर गिवन है, तो रेडियस क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा. ये तो इजी था, रेडियस आपका 15 आ गया. बस पाइथागोरस करना है. पाइथागोरस किस तरह अप्लाई करने, यहाँ पे आपको रेडियस 50 स्क्वायर माइनस वाई 50 स्क्वायर 50 स्क्वायर इज दिस लेंथ. अच्छा, इज द टोटल. तो क्या करना होगा, इजी है. The solid is melted and recast. नो बी की तरफ ना जाओ. बी में हमने बी की इंफॉर्मेशन आप ए में यूज नहीं कर सकते हैं, ये बात आपने जहन में रखना है. हमने फाइंड करना है द वॉल्यूम एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड. ये वॉल्यूम कह रहे हैं पूरी चीज की वॉल्यूम. या मैंने वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर. अच्छा, हम पहले हेमिस्फीयर का नहीं निकाल सकते हो रेडियस 15 के साथ 2/3 pi r square. वो तो हो जाएगा, लेकिन यही फार्मूला बनेगा इस पूरे शेप के लिए 1/3 pi r square h प्लस 2/3 pi r square. रेडियस तो हो जाएगा, तो कह रहा हूं पहले हेमिस्फीयर का निकाल लेते हैं. तो हेमिस्फीयर का पहले आप निकाल लो तो उससे क्या एडवांटेज होगा. अच्छा, इजी है, रेडियस आपको 15 गिवन है, सो इट मींस दैट दिस लेंथ इज आल्सो 15. स्लांट हाइट दी नहीं है उन्होंने. नहीं, यहाँ पे h हमने फाइंड मतलब जो h will be this one, blue line. Okay, this length is 15 because this is also the radius. This is 15, so your h will be equal to 50 minus 15. So your h will be equal to 35. Okay, so आपका वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1/3 into 3.14 into 15 square into 35 plus 2 divided by 3 into 3.14 into 15 square. So इससे आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा. अच्छा, इसी तरह आपने फिर द टोटल सरफेस एरिया भी फाइंड करना है. ओके, तो टोटल सरफेस एरिया एक्चुअली हमने क्या करने, सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फीयर का फार्मूला क्या है, दैट इज 4 pi r square, बट दिस इज हेमिस्फीयर, सो दैट्स विल बी इक्वल टू 2 pi r square. ये समझ आ गया आपको ना?
हम्म अब आ जाते हैं सरफेस एरिया की तरफ। ओके 2/3 पायर क्यूब नहीं था? वो तो वॉल्यूम है, दिस इज एरिया, एरिया आपका स्क्वायर में होगा। अच्छा सरफेस एरिया ऑफ द कोन का क्या हो जाएगा, तो बेस नहीं है यहाँ पे। ओके यहाँ पे हमने बेस नहीं लेना, लाइक पाई आर स्क्वायर आपने नहीं लेना, आपने सिर्फ कर्व सरफेस एरिया लेना है। तो कर्व क्या हो जाएगा यहाँ पे, पाई आर एल हो जाएगा, प्लस सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर। तो हेमिस्फेयर का क्या हो जाएगा, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर है। सो हाफ ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर इज 2 पाई आर स्क्वायर। Okay, so this will be pi Okay. RL plus pi RL plus 2 pi R square. yes। अच्छा यहाँ पे R तो मुझे 15 आ गया है, दिस इज़ 15, बट L इज़ L नहीं है, तो L को हम, दिस इज़ 35, हाइट आपका 35 आ गया, दिस इज़ 15, सो L आप यहाँ से फाइंड कर लो, दिस इज़ स्लैंट हाइट। सो योर L स्क्वायर विल बी इक्वल टू, या योर L विल बी इक्वल टू, दैट्स विल बी इक्वल टू h square plus r square square root. So your L will be equal to 35 square plus 15 square square root. Okay. अच्छा कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक? Okay. Part B. The solid is melted and recast to form a solid cylinder with a radius of 12.5 centimeter. तो Fi- हमारी हाइट 20 होगी फिर स्लैंट हाइट। या Yes, यहाँ पे 20 आ जाएगी, तो 20 आप वहाँ पे पुट कर लो, आपके पास सरफेस एरिया आ जाएगी। अच्छा अब कह रहे हैं कि इसी सॉलिड को, जो अभी हमने सॉलिड लिए हैं, इन्हीं को मैं मेल्ट कर लेता हूँ and recast to form a solid cylinder with a radius of 12.5 centimeter. Find the height of the cylinder. So as we know that the volume of the cylinder, that is equal to pi r square h. So यहाँ पे देख लो, तो आपका रेडियस आपको गिवन है, कितना होना चाहिए, सिलेंडर आपने इस तरह डिज़ाइन करना है जिसका रेडियस 12.5 सेंटीमीटर हो, बट वी नीड टू फाइंड द हाइट। वॉल्यूम क्या लेना है यहाँ पे, वॉल्यूम आपने इन्हीं का वॉल्यूम लेना है, सेम होगा ना? ये सेम ही होगा। यू विल टेक दिस वॉल्यूम वैल्यू ओवर हियर, क्योंकि इन्हीं को आप रिकास्ट कर लो, मेल्ट कर लो, तो सेम वॉल्यूम होगा, उन्हीं वॉल्यूम फिर हम से। वॉल्यूम से हाइट निकालेंगे। यस, हाइट निकाल लो, सो दैट्स विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर। बट लिखा है 13. सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर लीविंग आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई, मगर सरफेस एरिया सिलेंडर क्या होता? अच्छा यहाँ पे अब हमने सरफेस एरिया ऑफ दी सिलेंडर फाइंड करना है। ओके तो सिलेंडर आपका कुछ इसी शेप में होता है, दिस इज योर सिलेंडर, ओके, एंड दिस इज दी हाइट। सरफेस एरिया मीन्स के एक्सटर्नल सरफेस एरिया। ओके तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये कितना है, ये पाई आर स्क्वायर है। नहीं मैं एरिया की बात नहीं कर रहा, ये पूरे मैंने शेड नहीं किया, मैंने सिर्फ बाउंड्री को शेड किए हैं। दिस लेंथ विल बी इक्वल टू, सर्कल, नो सर्कल का बाउंड्री अगर आपने फाइंड करना है तो कौन सा, क्या उसके लिए हम एक स्पेसिफिक टर्म यूज करते हैं। सर्कल की बाउंड्री के लिए यस, सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस, गुड। सर्कमफ्रेंस का फार्मूला क्या है, सर्कमफ्रेंस का फार्मूला है 2 पाई आर। 2 पाई आर। अच्छा अब अगर मैं इसको और भी इस तरह शेड करता जाऊं, लाइक इसको नीचे ले आऊं,
इस तरह, कितना हाइट h पे, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, लाइक ये टोटल सरफेस, ये सरफेस कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, एरिया आपका स्क्वायर में सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर में आना चाहिए, तो दिस इज 2 पाई आर, तो ये h इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, सो यू विल गेट द सरफेस एरिया ऑफ दिस पाई 2 पाई आर अच्छा, इसको मैं एरिया कह सकता हूँ, यस मैं इनको एरिया इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि रेडियस का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, एंड हाइट सिलेंडर का सरफेस एरिया 2 पाई आर एच होता है। यस सिलेंडर और हेमिस्फीयर का सेम फॉर्मूला है। यस, लेकिन सिलेंडर में आपके और भी सरफेस आ रहे हैं, ये तो कर्व सरफेस के हो गए, दिस इज द अच्छा, एरिया कर्व ऑफ द, सिस्टम। या ऊपर क्या होगा, ये एरिया कितना हो जाता है, ये सर्कल है आपका, ये पाई आर है। एल क्या होगा यहाँ पे, पाई आर स्क्वायर। या पाया स्क्वायर होगा, और बॉटम का वो भी सर्कल है आपका, और बॉटम भी सेम होगा, यस, तो पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। यस, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, ये समझ आ गया आपको, ये कर्व का ये मैंने किस तरह फाइंड किया है, आपने ऊपर ये डिस्टेंस ये करना है, या लाइक दिस डिस्टेंस, उसको फिर हाइट के साथ एक्सपेंड कर लो नीचे की तरफ, सो दैट्स विल गिव यू द सरफेस एरिया। जिस तरह इसको आप इस तरह रिमेंबर कर लो कि जिस तरह वो मार्केट्स के बाहर वो शीट्स नहीं होते जो ऊपर नीचे करते हैं डोर। अच्छा, ये समझ आ गया आपको कि ये Yes. फार्मूला का समझ आ गया ना, कि आपने बस वो सर्कम्फ्रेंस ऑफ द सर्कल उसको नीचे एक्सटेंड कर लो, सो 2 पाई आर एच आपका ये सरफेस एरिया हो जाएगा, कर्व सरफेस। अच्छा, तो इसका इन टर्म ऑफ पाई मीन्स के पाई आप बाहर निकाल लो और अंदर टर्म्स वाले को सॉल्व कर लो, तो ये 2 आर एच हो जाएगा, एंड दिस इज 2 आर स्क्वायर। तो आर वैल्यू क्या हो जाएगा इन दिस केस, द आर इज 12.5, ओके, और एच क्या हो जाएगा, एच आपका इसी पार्ट से आ जाएगा, ओके। सो इन्हीं इंटरनल टर्म्स को सिंप्लीफाई कर लो, इससे जो आपके पास एक आंसर आ जाए वो आपने पाई के साथ लिखना है, ओके। उन्होंने कहा इन टर्म ऑफ पाई, 2 पाई नहीं होगा, 2 पाई नहीं, ये आप सॉल्व कर, इसमें आर की वैल्यू पुट कर लो, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर एच की वैल्यू अच्छा फिर पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। यस, नहीं पाई, या पाई लेट से आपके पास ये 240 आ गया, फाइनल आंसर को पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। 240 पाई लिखना है। उन्होंने कहा कि इन टर्म ऑफ पाई लीव योर आंसर इन टर्म ऑफ पाई, पाई के साथ आपने मल्टीप्लाई लाइक 3.514 वैल्यू नहीं लेना है यहाँ पे, आपने 240 पाई लिखना है बस, इस तरह नहीं करना कि 240 टाइम्स 3.14 उसको सिंप्लीफाई करना, और सिंप्लीफिकेशन नहीं करना। उन्होंने बस सिंपल कहा है कि आंसर इन टर्म ऑफ पाई। अच्छा, अब एक्सरसाइज 12D को स्टार्ट कर लेते हैं, ओके। सो उन्होंने एक रॉकेट दिया है आपको इन द शेप ऑफ कॉन, ओके, इज अटैच टू द सिलेंडर विद द सेम बेस रेडियस, बेस के रेडियस दोनों में सेम ही है, ओके, जो कि नॉर्मली रॉकेट्स में होते हैं। द कॉन हैज़ ए स्लैंट हाइट ऑफ 15 मीटर, द सिलेंडर हैज़ ए बेस डायमीटर ऑफ 12 मीटर एंड a height of 42 मीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कॉन। टू इजी। सबसे पहले हमारा रेडियस 6 है, और हमने फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रॉकेट। Yes, that's this. होमवर्क। Yes, this will be your homework, okay. 12D, question number 1. Okay. Question number 2. ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मुझे लग रहा है।
क्वेश्चन नंबर 2 को कर लेते ठीक हैं. है. A cylinder has a radius of 6 and a height of 15. A hole in the shape of a cone is bored into one of its ends. If the cone has a radius of 3, find the volume of the remaining solid. So radius of 6 and height of 15. Remaining solid का मतलब नहीं टोटल वॉल्यूम फाइंड करने की, हमें एक भी वॉल्यूम नहीं दी गई. यस, तो आपने वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग का फाइंड करना है. ये एक होल है इसके अंदर. अच्छा, पहले सिलेंडर का फाइंड करना है हमने. फॉर फॉर क्या, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच रेडियस 6 है, पाई 12, पाई 36 एच, पाई into 36 into 15, 3.14 into 36 into 3.14 into 30 into 15 equals to 1695.6. हमारा सिलेंडर का फॉर्मूला 1006.95. 1695.6. ओके, ये हमारा सिलेंडर का हो गया. और अब उन्होंने कहा है कि कौन का फाइंड करना है हमने. हम माइनस करेंगे. यस. अब कौन का रेडियस 3 है. सरफेस एरिया और इतनी वॉल्यूम है. वॉल्यूम ऑफ अ कॉन इज इक्वल टू 1/3 into pi r square h. तो होगा 1/3 into 3.14 into 9. हाइट क्या हो गया? हाइट सेम नहीं रहेगी. यस. 15 which equals to 1 divided by 3 into 3.14 into 9 into 15 equals to 141.3 अब क्या करना है? minus ओके. 154. यस. Question 3. यस. क्वेश्चन नंबर 3. A A solid solid consists of a hemisphere and a cylinder which has a common base. Cylinder has a base radius of 7 and a height of 10. Find the volume, total surface area of the solid. और सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर करेंगे जो है 2/3 पाई आर क्यूब. तो इस केस में होगा 2/3 0.6 infinite into 3.14 into 7 cube. ये नहीं होगा. 10 equals to volume. यस, टोटल वॉल्यूम. अच्छा, द टोटल सरफेस एरिया. और जैसे हमने अभी पढ़ा था सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया है
2 pi r plus 2 r square plus 2 pi r square. नहीं 2 पाई आर स्क्वायर आपने यहाँ पे लेना है कि नहीं? आपने क्योंकि लेना टोटल सरफेस एरिया है ना, तो हम हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया और सिलेंडर का हेमिस्फीयर ऐड करेंगे. सरफेस एरिया आपका आ जाएगा हेमिस्फेयर का तो 2 सरफेस pi r 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा हेमिस्फेयर का. वो आपका 4 2 pi r square. वो आपका 4 पाई आर स्क्वायर है, सो हाफ ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर इज पाई आर स्क्वायर हो जाएगा. प्लस ये कर्व कितना होगा? दिस इज 2 पाई आर एच. ओके 2 pi r h not square. 2 2 pi r h plus 2 pi r. प्लस 2 पाई आर बेस एरिया दैट इज पाई आर स्क्वायर. 2 circumference नहीं निकालना. सर्कम्फ्रेंस आपका हो जाएगा 2 पाई आर टाइम्स एच. सो वो तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 2 पाई आर टाइम्स एच विच इज इक्वल 2 पाई आर एच. सही है. 2 pi r square नहीं था. यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर, इस 2 पाई आर स्क्वायर आपने इस केस में लेने हैं. ये कर्व कितना हो जाएगा? 2 पाई आर एच हो जाएगा. ऊपर भी पाई आर स्क्वायर, नीचे भी पाई आर स्क्वायर. तो यहाँ पे हमने ऊपर नहीं लेना क्योंकि ऊपर तो हेमिस्फेयर आ गया. नीचे आपका सरफेस बनेगा, नीचे वाला पाई आर स्क्वायर हो जाएगा ये वाला. ऊपर वाला आपने हेमिस्फेयर का वो सरफेस एरिया लेना है. सो 2 पाई आर स्क्वायर नहीं लेना, पाई आर स्क्वायर लेना है. ओके, यूज योर माइंड देन आंसर मी. ओके आपका एच क्या हो जाएगा? वो 10 है, रेडियस इज 7. सो इजी है. ओके, सरफेस एरिया आपका आ जाएगा. सो लास्ट टाइम वी स्टार्टेड 3 फेज इंडक्शन मोटर. अब दोनों को मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है? कोई ग्लिचिंग वगैरह तो नहीं हो रही वॉइस में? सही आ रहा है सर. ओके अच्छा. 3 phase induction motor is also known as the rotating transformer. ओके क्योंकि इन दोनों के कंसेप्ट्स काफ़ी सिमिलर हैं. ओके तो ट्रांसफार्मर तो नॉर्मली हमारे पास स्टैटिक डिवाइस होता है. इंडक्शन मशीन या इंडक्शन मोटर्स जो हैं वो मेरे पास रोटेटिंग ट्रांसफार्मर भी इसको हम कहते हैं. ओके अच्छा, रोटेटिंग ट्रांसफार्मर, सो इट मीन्स कि यहाँ पे आपके फ्रैक्शनल लॉसेस भी होंगे, जबकि ट्रांसफार्मर में आपके फ्रैक्शनल लॉसेस नहीं होंगे. फ्रैक्शनल लॉसेस आपके मोमेंट्स के साथ रिलेटेड हैं. तो जहाँ पे भी मोमेंट होगा तो आपका फ्रैक्शनल लॉसेस वहाँ पे आपने इनकाउंटर करना है. सही है. लाइक अगर एफिशिएंसी आपने मैयर करने तो एफिशिएंसी में अक्सर हम लॉसेस मैयर करते हैं, तो लॉसेस में आपने फ्रैक्शनल लॉसेस को इनकाउंटर करने हैं. अच्छा तो यहाँ पे इंडक्शन मोटर में इज़ इन लास्ट क्लास वी डिस्कस दैट इंडक्शन मोटर में आपके स्टेटर होता है और जी. एक रोटर होता है. ट्रांसफार्मर में क्या होता है? ट्रांसफार्मर में हम एक कोर प्रोवाइड करते हैं. सही है. और यहाँ पे मैं प्राइमरी देता हूँ. दिस इज़ माय सेकेंडरी वाइंडिंग. इंडक्शन मोटर में, इंडक्शन मशीन में क्या होता है? इंडक्शन मशीन में आपका इस तरह का एक स्टेटर होता है. सही है. और यहाँ पे एक रोटर होता है. अच्छा तो स्टेटर को हम 3 फेज वाइंडिंग देते हैं. ओके एंड दिस इज द प्राइमरी वाइंडिंग. इसको आप प्राइमरी भी कह सकते हो. दिस इज द रोटर. ये सिंपल वाइंडिंग होता है रोटर का और ये शॉर्ट सर्किटेड होते हैं. ओके लाइक ओपन सर्किट नहीं होता, शॉर्ट सर्किट होता है. इसको हम सेकेंडरी भी कह सकते हैं. सेकेंडरी वाइंडिंग. अच्छा प्राइमरी और सेकेंडरी, यहाँ पे ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी थ्रू इंडक्शन के थ्रू ये लिंक होता था. ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था. इंडक्शन के थ्रू
ये एक दूसरे के साथ लिंक होता था, ओके। प्राइमरी थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू ये एक दूसरे के साथ लिंक होता था, सही है। यहाँ पे भी इसी तरह है। 3 फेज़ वाइंडिंग जो हैं, जो हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी जो वाइंडिंग है वो एक दूसरे के साथ थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम लिंक करेंगे अभी आफ्टर फ्यू मिनट्स, ओके। अच्छा, जहाँ पे भी आप गांव चले जाओ या आप अपने घर में देख लो तो आपका घर में वाटर पंप्स होते हैं, और वाटर पंप्स में आपके वो सिंगल फेज़ इंडक्शन मोटर हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ये काफ़ी फेमस मोटर हैं, और ये 3 फेज़ इंडक्शन मोटर मोस्टली हम इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं। तो ये क्यों हम इतना ये फेमस क्यों हैं, इसके फ्यू एडवांटेजेस हैं हमारे पास। एक तो ये है कि ये काफ़ी सिंपल हैं, ओके। इसकी कंस्ट्रक्शन इतनी कम्प्लेक्स नहीं है, और दूसरी बात यह है कि ये रग्ड कंस्ट्रक्शन है इसका। लाइक रग्ड मींस के इट कैन टोलरेट द हार्श इन्वायरमेंट, ओके। लाइक अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ कर लो तो इसके ऑपरेशन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर लो या आप कोई डस्ट इसके ऊपर आ जाए, तो दिस इज़ द रग्ड कंस्ट्रक्शन, ओके। इट मींस के इट कैन टोलरेट द हार्श इन्वायरमेंट, सही है। तो अच्छा, दूसरा एडवांटेज प्लस पॉइंट इस इंडक्शन मोटर में ये है कि ये चीप है, ओके। और लाइक इसका जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम होता है एज़ कम्पेयर टू द अदर मोटर्स। और थर्ड वन इज़ कि इसका मेंटेनेंस भी इसके लिए इतना रिक्वायर्ड नहीं होता। तो इन्हीं एडवांटेज की वजह से इंडस्ट्रीज़ वगैरह में इनको हम यूज़ करते हैं वहाँ पे, इन्हीं फ्यू पॉइंट्स की वजह से। अच्छा, इंडक्शन मोटर में हमारे पास स्टेटर होता है, एक रोटर होता है। स्टेटर को हम 3 फेज़ सप्लाई देते हैं, ओके। और स्टेटर के थ्रू फिर हम थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू हम रोटर में फिर करंट को, ईएमएफ को इंड्यूस करते हैं, सही है। किस तरह करते हैं वो अभी हम आज के क्लास में हमने उनको डिस्कस करने। अच्छा, एक दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि यहाँ पे हमने क्या करना है, जो हमारा वहाँ पे था डीसी मशीन में हम क्या करते थे, वहाँ पे हम सिंगल सप्लाई देते थे। लाइक वो आपका जो वहाँ पे हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था कि ये आपका फील्ड वाइंडिंग है और ये आपका रोटर है, सही है। तो इसको हम सिंगल सप्लाई, लाइक यहाँ से एक सप्लाई देते हैं, इसी एक ही सप्लाई से हम दोनों को एक्साइट करते हैं। लाइक यहाँ पे मेरे पास फील्ड वाइंडिंग को भी इसी सप्लाई से इसी टर्मिनल देते हैं, और यहाँ पे रोटर का भी एक ही सप्लाई होता है। जबकि यहाँ पे इस तरह नहीं है। अब हमने जो हमारी ये वोल्टेज सप्लाई है वो हमने सिर्फ स्टेटर को देना है, ओके। सो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज सिंगली एक्साइटेड मशीन। अच्छा, जो नॉर्मली हम वो डीसी मशीन जो हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं बुक्स में, जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया, लेकिन प्रैक्टिकली हमारे पास वो हम सेपरेटली एक्साइटेड देते हैं। सेपरेटली एक्साइटेड में हम क्या करते हैं, हम यहाँ से ये मेरा फील्ड वाइंडिंग हो गया और ये मेरे पास रोटर हो गया, ओके। तो इसको मैं एक सप्लाई दे देता हूँ, सो ये वोल्टेज सप्लाई, और यहाँ पे भी इसको भी मैं एक दूसरा वोल्टेज सप्लाई देता हूँ। जो स्टेटर होते हैं उसको हम एसी सप्लाई देते हैं, और जो एसी एक्साइटेशन देते हैं इसको, ओके। और जो हमारे पास रोटर होते हैं उसको हम डीसी एक्साइटेशन देते हैं। सो दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ मशीन इज नोन एज द डबली एक्साइटेड मशीन। जबकि आपका इंडक्शन मशीन जो है वो सिंगली एक्साइटेड मशीन है, ओके। अक्सर एमसीक्यूज में आ जाते हैं, तो दिस इज सिंगली एक्साइटेड मशीन। अच्छा, इसमें हमारे पास जो रोटर को भी हमने लास्ट टाइम काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था, और उस रोटर को फिर फर्दर डिवाइड किए स्क्विरल गेज में और वॉन टाइप में। तो स्क्विरल गेज में आपके बार्स होते हैं, ओके, रोटर बार्स होते हैं, जिनको हम
सर इसमें इसमें बताइएगा सर, अपने लेफ्ट साइड पे लिखा है एसी सप्लाई और राइट साइड पे क्या लिखा है जो ये ग्रीन है, ग्रीन में? यस, यहाँ पे हमारे पास इस तरह होता है कि एक्साइटेशन हम देते हैं डीसी, जी ये सेपरेटली एक्साइटेड मोटर है, सही है। तो यहाँ पे हम ओके एसी एक्साइटेशन जो होते हैं वो फील्ड वाइंडिंग को देते हैं, ओके, और डीसी एक्साइटेशन जो होते हैं वो हम रोटर को देते हैं, ओके। सही है। तो ये डबली एक्साइटेड है, राइट जबकि साइड पे डीसी डीसी सप्लाई देंगे हम। यस, यहाँ पे हम डीसी सप्लाई देते हैं, ओके ओके, बस सही है। कंफर्म हो गया। यस, तो फील्ड को हम A6 सप्लाई देते हैं। सो दिस इज लाइक यहाँ पे हम दो एक्साइटेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। सो दिस इज द डबली एक्साइटेड मशीन जो डीसी मशीन में हमने पढ़ा था। जबकि यहाँ पे आपने रोटर को कोई एक्साइटेशन नहीं देना, रोटर को आपने सिंपल वाइंडिंग को आपने शॉर्ट सर्किट करना है एक दूसरे के साथ। स्टेटर को आपने 3 फेज सप्लाई देनी है जो हम नॉर्मली देते हैं। जिस तरह हम मोटर को रन करते हैं, हम स्विच ऑन कर लेते हैं, तो वो हम क्या करते हैं, हम स्टेटर को 3 फेज सप्लाई देते हैं, या सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में हम रोटर को सिंगल फेज सप्लाई दे देते हैं, सही है। अच्छा, इसका जो इंडक्शन मशीन है, जो भी इंडक्शन मोटर आपके सामने आ जाए तो उनमें जो रोटर लगा होगा तो वो तो या तो स्क्विरल गेज रोटर होगा या वॉन टाइप होगा, ओके। या ये स्क्विरल गेज टाइप होगा या वॉन टाइप होगा। स्क्विरल गेज मीन्स के इसमें आपके थिक बार्स होंगे, ओके, पैरेलल बार्स होंगे लाइक दिस स्क्विरल गेज में, और उनको आपने शॉर्ट सर्किट करने एंड पे इस तरह, सही है। लाइक इसकी हम वो रिंग सी बना लेते हैं लाइक दिस, जिस तरह वो केज नहीं होता उसी तरह का है। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज स्क्विरल गेज, सही है। अच्छा, अभी मैंने फ्यू मिनट्स पहले कहा कि रोटर को आपने शॉर्ट सर्किट करना है, बस इसी को हम शॉर्ट सर्किट कर लेते हैं, ओके। सो दिस इज माय रोटर, ये मेरा रोटर बन गया, सही है। इस जो आपका ये होगा मटेरियल कौन सा होगा, तो या तो ये आप कॉपर यूज़ कर सकते हो, लेकिन अक्सर अगर कम प्राइस का आपने बनाना है तो आप एल्यूमिनियम यूज़ कर लो। यहाँ पे एल्यूमिनियम प्राइस तो कम होता है एज़ कम्पेयर टू दी एल्यूमिनियम इज़ चीपर देन कॉपर। तो अच्छा, यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट है, लाइक डिसएडवांटेज है इसी रोटर में, वो ये है कि आप यहाँ पे इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होगा वो लो होगा। ये हम आगे इक्वेशन पढ़ेंगे, तो आगे जब हम इक्वेशन पढ़ेंगे तो आगे जो टॉर्क का इक्वेशन है उसमें आपका जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन आएगा, वो हम आगे पढ़ेंगे फिर, सही है। तो जितना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो उतना टॉर्क आपका ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे देख लो, तो ये बार्स है मेरे पास, इनको मैंने शॉर्ट सर्किट किया हुआ है। तो यहाँ पे आपका लाइक इसमें आप कोई रेजिस्टेंस को इंसर्ट नहीं कर सकते, या अगर आप कर भी लो, लेट्स से मैं यहाँ पे एक रेजिस्टर को इंसर्ट कर लेता हूँ फॉर इंक्रीजिंग इट्स स्टार्टिंग टॉर्क, तो क्या हो जाएगा, उससे आपकी वो एफिशिएंसी कम हो जाएगी, क्योंकि ये तो कॉन्स्टेंटली कनेक्ट होगा। तो स्टार्टिंग में तो ये आपको प्लस पॉइंट दे देगा, स्टार्टिंग में ये आपको टॉर्क ज़्यादा कर देगा, लाइक स्टार्टिंग टॉर्क इसकी अच्छी हो जाएगी बाय कनेक्टिंग दिस रजिस्टर। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब ये रन होगा तो इसमें हीट लॉसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगी, जिसकी वजह से इसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो ये मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे इस तरह का अरेंजमेंट इसमें करना चाहिए ताकि जब स्टार्ट हो ये लाइक जब ये रोटेशन स्टार्ट कर लें तो उस टाइम ये रजिस्टर कनेक्ट हो, लेकिन जैसे ये फुल स्पीड तक पहुंच जाए तो फिर ये रेजिस्टेंस ज़ीरो होनी चाहिए। मुझे इसमें इस तरह की वो अरेंजमेंट करनी चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में जब ये रजिस्टर कनेक्ट होगा तो आपका टॉर्क स्टार्टिंग टॉर्क हाई होगा, जिसकी वजह से ये आपका रोटेशन स्टार्ट कर लेगा, सेल्फ स्टार्टिंग मशीन ये बन जाएगा,
सेल्फ स्टार्टिंग, ये सेल्फ स्टार्टिंग मशीन बन जाएगा, सही है। लेकिन जैसे ये फुल स्पीड तक पहुंच जाए ये रोटर, तो फिर इसी रजिस्टर को मैंने डिसकनेक्ट करना है। लेकिन वो अरेंजमेंट इसमें करना, स्क्वायर गेज में करना, वो पॉसिबल नहीं होता। वो हम फिर वॉन टाइप रोटर में करते हैं, सही है। वहाँ पे ये पॉसिबिलिटी आ जाती है। स्टार्टिंग में हम रजिस्टर को कनेक्ट कर लेते हैं, उसको हम स्टार्टिंग रजिस्टर कहते हैं फिर। और जैसे ही वो फुल स्पीड पकड़ लेते हैं वो रोटर, तो फिर वो उसी स्टार्टिंग रेजिस्टेंस को हम ज़ीरो कर लेते हैं, लाइक डिसकनेक्ट कर लेते हैं। तो इसमें ये एक ही नेगेटिव बात है कि लो स्टार्टिंग टॉर्क है, सही है। एमसीक्यूज में आ जाएं तो वहाँ पे आपने यू शुड रिमेंबर दिस पॉइंट। सही है। तो लाइक एडिंग एनी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन स्क्वायर गेज रोटर इज नॉट पॉसिबल, ओके। अच्छा, वॉन्ड रोटर की तरफ आ जाते हैं। तो वॉन्ड रोटर में हमारे पास क्या होता है, वो भी आपका इस तरह एक सिलेंड्रिकल शेप में होता है, सही है। और इसमें हम क्या करते हैं, लेमिनेशन कर लेते हैं, लाइक लेमिनेट कर लेते हैं इस तरह। और between two laminated plates we put a mica insulation, okay। ईडी करंट को कम करने के लिए हम यहाँ पे लेमिनेट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम वाइंडिंग, यहाँ पे तो मैं सॉलिड वाइंडिंग यूज़ कर रहा था, लाइक कॉपर बार्स यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा था, थिक कॉपर बार्स में यहाँ पे यूज़ कर रहा था। यहाँ पे मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैंने एक सिलेंडर ले लिया और यहाँ पे मैं 3 फेज़ वाइंडिंग कर लेता हूँ इसके ऊपर, ओके। 3 फेज़ वाइंडिंग इसके ऊपर कर लेता हूँ इस तरह। और उन 3 फेज़ वाइंडिंग जिस तरह मैं स्टेटर पे 3 फेज़ वाइंडिंग करता हूँ उसी तरह यहाँ पे कर लेता हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं मोस्टली 3 फेज़ वाइंडिंग जो होता है वो स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग होता है, स्टार वाइंडिंग। सही है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे मैं इस तरह कर लेता हूँ कि स्लिप रिंग अटैच कर लेता हूँ, ओके। यहाँ पे आपके स्लिप रिंग्स आ जाएंगे। स्टार वाइंडिंग है तो 3 टर्मिनल्स आएंगे। एक आपका यहाँ से आ जाएगा, ये स्लिप रिंग के साथ अटैच हो जाएगा। दूसरा टर्मिनल जो होगा इन वाइंडिंग से वो यहाँ पे इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। तीसरा जो होगा वो इस स्लिप रिंग के साथ कनेक्ट हो जाएगा, सही है। अच्छा, इन स्लिप रिंग के साथ मैं ब्रश को अटैच कर लेता हूँ। अच्छा, जैसे ये रोटर रोटेट होगा तो ये स्लिप रिंग भी उसके अकॉर्डिंगली इस तरह रोटेट होंगे, सही है। यहाँ पे मैं ब्रश को अटैच कर लेता हूँ। ब्रश आपके स्टैटिक पोजीशन पे होंगे। इसी तरह यहाँ पे भी ब्रश और यहाँ पे भी ब्रश आ जाएगा। ये मैंने एक रियोस्टेट सा बना दिया है, सही है। अच्छा, स्टार्टिंग में क्या होगा, ये थोड़ा ऊपर आ जाएगा, नहीं ये यहाँ यहीं पे रहेगा। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, स्टार्टिंग में यहाँ पे आप जी स्टार्टिंग में ये क्या होगा, स्टार्टिंग में यहाँ पे आपके पास रेजिस्टेंस आ जाएगी। दिस इज दी रेजिस्टेंस, ओके। तो स्टार्टिंग में आपका रेजिस्टेंस आ जाएगा, ओके। तो आपका स्टार्टिंग टॉर्क हाई हो जाएगा। बिकॉज स्टार्टिंग टॉर्क इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू दिस रेजिस्टेंस, ओके। लेकिन जैसे ये अपने फुल स्पीड तक पहुंच जाए तो फिर ये रियोस्टेट आगे की तरफ पुश हो जाएगा, जिसकी वजह से ये आपका यहाँ पे आ जाएगा।
तो फिर आपका ये रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाएगा. ओके, तो फिर आपका ये अपनी जो so that's why this is the one type rotor. Okay, and in this case you can easily insert the resistance, okay, starting resistance, through which you can increase your starting torque. Okay, सर ये बताइएगा पुश क्यों होगा? ये हम पुश इसलिए, अगर मैं इसको यहाँ पे नीचे रख लूँ तो इससे इसमें वो हीट लॉसेस काफ़ी वो हो जाते हैं, इंक्रीज़ हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं ऐसे ये, जिसकी वजह से आपका रोटर अक्सर हीट अप हो जाते हैं या आपकी जो एफिशिएंसी है वो काफ़ी कम हो जाती है उसकी वजह से. तो हम इसको सर ये ऑटोमेटिक होंगे? यस, ये हम इसको वो कंट्रोलर के थ्रू हम इसको इस तरह अरेंज कर लेते हैं कि ये ऑटोमेटिक जब अपनी फुल स्पीड तक पहुंच जाए तो ये ऊपर की तरफ पुश हो जाएगा, जिसकी वजह से ये सारे जो होंगे शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे एक दूसरे के साथ. ओके, लाइक ये सारे वाइंडिंग जो है ना ये शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे. मैंने अभी फ्यू मिनट्स पहले आपको कहा कि जो रोटर के वाइंडिंग्स होते हैं वो हम शॉर्ट सर्किट वाइंडिंग होते हैं आपके, जिस तरह यहाँ पे हमने किया था स्क्विरल गेज में हमारे पास जितना भी होता है रोटर बार्स, उनको हमने एंड पे थ्रू एंड रिंग हमने सब कुछ शॉर्ट सर्किट किया था. इसमें कुछ भी नहीं होता रोटर में, सिंपल वाइंडिंग होते हैं, उनको शॉर्ट सर्किट कर लो. सो दैट्स विल बी योर रोटर इन इंडक्शन मोटर. ओके, बाकी में नहीं होते इस तरह. बाकी में हम बाकी जो मशीन्स होते हैं उसमें हम सेपरेटली एक एक्साइटेशन देते हैं, एक वोल्टेज सप्लाई देते हैं, जबकि यहाँ पे हमने कोई सप्लाई नहीं देना, सिंपल आपने शॉर्ट सर्किट करना है. अच्छा, ये समझ आ गया आप लोगों को ये स्पेशली इसका, या दोबारा समझा दूँ? ये सर अंडरस्टैंडिंग हो गई है. अच्छा, अब उसकी तरफ आ जाते हैं, इसके प्रिंसिपल की तरफ. कि अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये रोटेशन किस तरह करेगा. ओके, लाइक अभी फ्यू मिनट्स पहले मैंने कहा कि थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग एक दूसरे के साथ लिंक होती हैं. तो ये किस तरह लिंक होती हैं तो उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. लेट्स से दिस इज योर रोटर और ये रोटर स्लॉट्स हैं. ओके, अच्छा, इन्हीं स्लॉट्स के अंदर मैं कंडक्टर को कर लेता हूँ. 3 फेज वाइंडिंग है. ओके, दिस इज रोटर, सो इसमें 3 फेज वाइंडिंग है. ये रेड कलर के कंडक्टर्स हैं. ओके, स्लॉट्स में मैंने कंडक्टर रखे हैं. सही है. अच्छा, यहाँ पे आपका स्टेटर हो गया, ये आपका स्टेटर है. सही है, इस साइड पे. और स्टेटर आपका, मैंने स्टेटर को वोल्टेज सप्लाई दिए, 3 फेज सप्लाई मैंने स्टेटर को दिए, जिसकी वजह से उसमें वोल्टेज की वजह से करंट फ्लो होगा, करंट की वजह से आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा. ओके, तो जब आपका इलेक्ट्रॉन स्टैटिक होते हैं, रेस्ट पोजीशन पे होते हैं, तो उसके अक्रॉस कितने फील्ड्स होते हैं? मैंने पहले भी कहा था आपको, इकरार आपको 2 होंगे सर. नहीं, जब इलेक्ट्रॉन आपका रेस्ट पोजीशन पे होगा तो इन्हीं इलेक्ट्रॉन के अक्रॉस आपका एक ही फील्ड होगा, दैट इज द इलेक्ट्रिकल फील्ड. इलेक्ट्रिकल. जब ये इलेक्ट्रॉन मोशन स्टार्ट कर लेते हैं, इट मींस कि इन दिस केस द करंट विल बी इक्वल टू 0. लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन मोशन स्टार्ट कर लेते हैं तो फिर आपका करंट विल नॉट बी इक्वल टू 0. then what will happen, you will have 2 types of field, one is the electric field और दूसरा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा. ओके,
तो यहाँ पे 3 फेज वाइंडिंग मैंने दिए तो उसमें करंट फ्लो हो रहा है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रहे हैं। और लेट्स से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपका इसी डायरेक्शन में लाइक दिस, इस तरह आपका मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में। ओके अच्छा, यहाँ पे आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, सही है। लाइक ये आपका इस तरह रोटेट होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड आपका इस तरह रोटेट होगा। सो दिस इज द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, स्पीड क्या होगा इन रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का? यू कैन फाइंड दैट स्पीड बाय यूजिंग दिस फार्मूला। So this is the flux. So instead of this I will write WS, stator flux omega rotational speed. So that will be equal to 120 F by P, सही है। So it depend on the frequency and the number of poles, कि आपके नंबर ऑफ पोल्स कितने बन रहे हैं, नॉर्थ साउथ। यहाँ पे आपने 3 फेज वाइंडिंग किस तरह की है, जिसकी वजह से ये डिपेंड करता है कि 3 फेज वाइंडिंग पे मैन्युफैक्चरर पे डिपेंड करता है कि उन्होंने इस मोटर में कितने पोल्स जनरेट किए हैं यहाँ पे। तो जैसे ही 3 फेज सप्लाई देता हो तो वो पोल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, और फ्रिक्वेंसी जो आपकी 50 है, तो अगर 4 पोल्स होंगे तो उसको आप कर लो, तो आपके पास ये एक स्टेटर का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का वो आ जाएगा, स्पीड आ जाएगा कि वो किस तरह लाइक यहाँ पे नॉर्थ होगा तो आफ्टर फ्यू इंटरवल यहाँ पे साउथ हो जाएगा। तो ये इस तरह रोटेट होगा, ये नॉर्थ पोल यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये इस तरह रोटेट होंगे ये पोल, सही है। इनको हम रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। लाइक आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रोटेट हो रहे हैं इस तरह। वैसे स्टेटर आपका स्टैटिक पोजीशन में होगा, लेकिन ये जो फील्ड है वो आपका रोटेट होगा इस तरह, सही है। तो इट मीन्स कि आपके जो पोल्स होंगे वो फिक्स पोजीशन पे नहीं होते हैं। लाइक यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे आपका ये फिक्स पोजीशन होगा, ये नॉर्थ होगा, आफ्टर फ्यू माइक्रो सेकेंड ये आपका साउथ हो जाएगा, फिर ये नॉर्थ हो जाएगा, फिर साउथ हो जाएगा, ये नॉर्थ यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह ये रोटेट होंगे, इस तरह ये नॉर्थ इस तरह रोटेट होगा, फिर उसके बाद साउथ रोटेट होगा। सो दिस इज़ द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ओके अच्छा, ये फील्ड आपके रोटेट हो रहे हैं, नॉर्थ साउथ पोल्स आपके रोटेट हो रहे हैं। सो दैट्स व्हाई दिस इन्होंने रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। इनका स्पीड क्या होगा? सो यू कैन फाइंड दैट बाय यूजिंग दिस फार्मूला। ओके, इट डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी इन द नंबर ऑफ पोल्स। अच्छा, लेट्स से यहाँ पे जो फ्लक्स लाइंस हैं वो आपके BS हैं, उसको मैं BS अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो ये रोटर हैं, तो ये फ्लक्स लाइंस यहाँ पे रोटर में जाएंगे, सही है। और ये फ्लक्स यहाँ पे चेंज हो रहे हैं। सो जब आपका फ्लक्स चेंज होगा तो फेराडे ने हमें क्या कहा था कि योर EMF विल गेट जनरेटेड इफ़ देयर इज़ ए रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो फिर व्हाट विल हैपन, एन EMF विल गेट जनरेट। ओके, EMF की वजह से आपका इंड्यूस करंट जनरेट होगा, और इंड्यूस करंट आपका इन्हीं वायर में फ्लो स्टार्ट कर लेंगे, सही है। अच्छा, ये क्या होगा? दिस इज़ द नॉर्थ पोल एंड दिस इज़ द साउथ पोल, और यहाँ पे एक आप करंट कैरिंग कोयल को इसमें रख लो। ओके, यहाँ पे आप वोल्टेज सप्लाई दे दो, सही है। तो जिसकी वजह से इसमें करंट फ्लो होगा, तो और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, सही है। तो इफ़ यू प्लेस ए करंट कैरिंग कोयल इनसाइड ए मैग्नेटिक फील्ड, तो ए फोर्स विल एक्ट ऑन दिस, सही है। तो यहाँ पे जब आप करंट कैरिंग कोयल को इसी मैग्नेटिक फील्ड में रख लो, तो इस पे एक फोर्स एक्ट होगा, एंड दैट फोर्स इज योर लॉरेंस फोर्स, दैट इज इक्वल टू IL क्रॉस B। Okay, this force will depend on the magnitude of this current. This force will also depend on the length of this wire which come under this magnetic field,
and this force also depend on the magnitude of this magnetic field. okay, अच्छा, जो हमारे पास यहाँ पे इसी तरह यहाँ पे भी, यहाँ पे मेरे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरे पास कोई करंट नहीं है बार्स में, मैं इस तरह कर रहा हूँ कि इसी को मैं चेंज कर रहा हूँ, सही है। जो मेरा फ्लक्स है उसको मैं चेंज कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरे इन्हीं बार्स में ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। तो वो ईएमएफ जो है उनका जो ईएमएफ इसमें इंड्यूस्ड होगा वो दैट्स विल बी इक्वल टू EMF induced, that is equal to the relative velocity times magnetic field times L. Okay, so relative velocity is the velocity of stator and rotor. Okay, so relative velocity means ke for example, if a body is moving with a velocity of 30 meter per second and another car is moving with a velocity of 50 meter per second, तो relative speed between these two car is 20 meter per second. okay, तो इसी तरह यहाँ पे भी जो स्टेटर और रोटर का relative speed वो this is the relative velocity. एक्चुअली यहाँ पे क्या होगा कि जब ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा इन रोटर बार्स में, तो उसकी वजह से आपका इंड्यूस करंट जनरेट हो जाएगा, तो करंट कैरिंग कोयल ये बन जाएगा जिस तरह यहाँ पे था। तो उस पे एक फोर्स सेट होगा और वो फोर्स आपका इसके इक्वल होगा। ओके, और यहाँ पे देख लो तो यहाँ पे आपका बी किस डायरेक्शन में, बी आपका इस डायरेक्शन में बन रहा है यहाँ पे। दिस इज द स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, ये लेट्स से ये आपका क्लॉकवाइज में रोटेट हो रहे हैं, सही है, तो वेलोसिटी आपका इस डायरेक्शन में आ रहा है, सही है। तो इस पे जो फोर्स, दिस इज द कॉइल, ओके, ये आपका इस तरह है कि यहाँ पे ये बी हो गया, ये आपका वेलोसिटी हो गया, और इस पे जो फोर्स होगा दैट इज़ इक्वल टू एफ इज़ इक्वल टू आई। ये इसका जो वेक्टोरियली जो है वो इस तरह होगा कि तो ये आपका दिस इज़, ये इसमें करंट जा रहे हैं, ओके, लाइक करंट इनसाइड जा रहे हैं, सही है। लाइक दिस इज़ योर मैग्नेटिक फील्ड, ओके, दिस इज़ द करंट। तो ये आपका द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, दैट्स विल गिव यू द फोर्स, ओके। तो फोर्स आपका इस तरह एक्ट होगा, लाइक दिस विल बी द फोर्स, ओके, फोर्स का ये डायरेक्शन बनेगा। तो यहाँ पे जो फोर्स एक्ट होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा, लाइक दिस, ओके। लाइक यहाँ पे जो आपका फोर्स एक्ट होगा इस पे, तो वो इस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होगा, ओके। अच्छा, यहाँ पे करंट आउट फ्रॉम दी लाइक आउट फ्रॉम दी स्क्रीन जा रहे हैं, और यहाँ पे जो रोटर बार होगा उसमें करंट इनटू दी स्क्रीन जा रहे हैं, सही है। तो यहाँ पे फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे फोर्स आपका इस डायरेक्शन में एक्ट होगा, सही है। तो ये इन्हीं फोर्सेस की वजह से आपको ये रोटर जो है ये रोटेशन स्टार्ट कर लेगा, और ये इनका जो रिलेटिव स्पीड होगा फिर वो डिक्रीज़ होते जाएगा, सही है, जिसकी वजह से आपका ईएमएफ डिक्रीज़ होते जाएगा। तो उसको हम फिर अभी फ्यू मिनट्स के बाद डिस्कस कर लेते हैं। वो स्लिप, इसमें एक दूसरा कंसेप्ट आ जाते हैं, वो स्लिप का है, तो स्लिप का हम फिर डिस्कस कर लेते हैं।
अच्छा, जब ये रोटर आपका स्टैटिक पोजीशन में होगा तो तब क्या होगा, फिर आपका जो ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स आपका ज़्यादा होगा। तो जितना ज़्यादा फ्लक्स होगा तो उतना ज़्यादा आपका ईएमएफ जनरेट होगा। तो जितना ज़्यादा ईएमएफ जनरेट होगा तो उतना ज़्यादा आपका फोर्स एक्ट करेगा इस पे। तो मैक्सिमम फोर्स विल एक्ट ड्यूरिंग स्टार्टिंग पीरियड। ओके, यहाँ पे हाई फोर्स एक्ट होगा इस पे, लेकिन जैसे ये रोटेशन स्टार्ट कर लेता है तो फिर आपका जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो कम हो जाती है। स्टार्ट में आपका रिलेटिव वेलोसिटी ज़्यादा है। लाइक यहाँ पे देख लो, तो इफ़ दिस कार इज़ एट रेस्ट पोजीशन, तो फिर आपका रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन दिस कार एंड दिस कार विल बी 50 मीटर पर सेकेंड। बट इफ़ दिस कार इज़ मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, तो फिर उसके बाद आपका रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पे भी जब ये रोटेशन स्टार्ट कर लेते हैं तो आपका रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो कम हो जाता है। सही है। जिसकी वजह से आपका फिर ईएमएफ भी कम जनरेट होगा यहाँ पे। वो लेंस ला यहाँ पे फिर वो आ जाता है। लाइक ये कोशिश करते हैं कि जो चेंज है, जो उसका काज है, काज को ये ज़ीरो कर लें। लेंस ला में हमने क्या कहा था कि अकॉर्डिंग टू दिस लेंस ला the direction of current will be such that they tend to oppose the cause producing them। ओके, ये हमने पहले डिस्कस भी किया था कि लेंस ला के अकॉर्डिंगली ये काज को, जो काज मीन्स के जो इस ईएमएफ को जनरेट कर रहे हैं, कौन जनरेट कर रहे हैं, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इसको जनरेट कर रहे हैं। सही है। रोटेटिंग फ्लक्स जो है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, इसको दैट इज़ द काज ऑफ दिस ईएमएफ। तो ये क्या करेगा रोटर, ये अपनी स्पीड को इंक्रीज़ करता जाएगा। ओके, ये क्यों इंक्रीज़ करता जाएगा, ये इसलिए इंक्रीज़ करता जाएगा ताकि इनकी रिलेटिव वेलोसिटी ज़ीरो हो जाए। सही है। लेकिन ये रिलेटिव वेलोसिटी इनकी ज़ीरो नहीं होगी। क्यों ज़ीरो नहीं होगी? बिकॉज ऑफ द फ्रैक्शनल फोर्स। ओके, फ्रैक्शन की वजह से, फ्रैक्शन एंड वेंडेज फोर्स। ओके, क्योंकि देयर इज एन ईयर गैप बिटवीन स्टेटर एंड रोटर, तो उसमें ईयर आ जाते हैं, तो उसकी वजह से आपके वेंडेज लॉसेस भी होते हैं। तो फ्रैक्शनल एंड वेंडेज लॉसेस की वजह से ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को कैच नहीं करेगा। लाइक जिस स्पीड के साथ ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहे हैं, उन्हीं स्पीड की तरफ ये अप्रोच नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से इनका जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो ज़ीरो नहीं होगा। ओके, क्यों ज़ीरो नहीं होगा? बिकॉज ऑफ दिस फ्रैक्शनल एंड वेंडेज लॉसेस। तो इसी वजह से आपका जो इट विल बी इम्पॉसिबल कि आपका रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो हो जाए। लाइक जो दोनों स्पीड है वो 50 मीटर पर सेकेंड के साथ, अगर इफ़ दिस car is moving at 50 meter per second and this car is also moving with the velocity of 50 meter per second, तो फिर आपका relative velocity of A and B वो आपका ज़ीरो हो जाएगा इन दिस केस। तो यहाँ पे भी ये रोटर कोशिश करेगा कि जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की जो स्पीड है उसी स्पीड को मैं अचीव कर लूँ, बट वो नहीं कर पाएगा बिकॉज ऑफ द फ्रैक्शनल एंड वेंडेज लॉसेस। ओके, अच्छा, इसके बाद एक दूसरा टॉपिक है दैट इज़ दी स्लिप। तो स्लिप हमें यही डिफरेंस के बारे में बताता है। सही है कि आपका जो सिंक्रोनस स्पीड है, सिंक्रोनस स्पीड मींस के जो मेरा जो स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड जिस स्पीड के साथ वो रोटेट हो रहे हैं, जिस स्पीड के साथ वो स्टेटर के जो पोल्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, तो उनको हम सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। और दूसरा स्पीड जो है वो इसी रोटर का है, जिनको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ दी सिंपल स्पीड n। और वो कौन सी स्पीड के साथ जा रहे हैं? वो सिंक्रोनस स्पीड के साथ जा रहे हैं, दैट इज़ ns। सो स्लिप मुझे
इन्हीं दोनों के बारे में बताते हैं कि योर स्लिप विल बी इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ सिंक्रोनस माइनस एन डिवाइड बाय एन एस। ओके, सो अगर दोनों का स्पीड इक्वल हो जाए, लाइक ये रोटर इतनी तेज़ी के साथ रोटेट हो कि ये उसी जो मैग्नेटिक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हैं उनको अचीव कर लें, तो फिर आपका क्या हो जाएगा, आपका स्लिप ज़ीरो हो जाएगा और फिर कोई इंड्यूस ईएमएफ यहाँ पे जनरेट नहीं होगा, जिसकी वजह से ये मोटर स्टॉप हो जाएगा, ये रोटेशन नहीं करेगा। सही है? अच्छा, स्लिप का कंसेप्ट थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं, उसके बाद क्लास को वाइंड अप कर लेते हैं। हमारे पास स्लिप इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सिंक्रोनस स्पीड एंड द स्पीड ऑफ द रोटर। ओके, तो दिस इज़ द रोटर और ये आपका स्टेटर है। सही है, दिस इज़ स्टेटर एंड दिस इज़ रोटर। तो अगर आपका स्टेटर में आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का जो स्पीड होगा दैट्स विल बी इक्वल टू दी सिंक्रोनस स्पीड, ओके, एन एस। लेट्स से आपका जो स्टेटर है वो स्टैटिक पोजीशन पे है, वो रोटेट नहीं हुआ, ओके, स्टेशनरी है, आपका मोटर स्टेशनरी है। तो क्या होगा उस टाइम आपका एन ज़ीरो हो जाएगा, ये एन आपका ज़ीरो हो जाएगा, तो आपका ये क्या बन जाएगा, एन एस डिवाइड बाई एन एस हो जाएगा। सो आपके ये 1 आ जाएगा। ओके, तो स्लिप आपका 100% हो जाएगा, दिस इज द परसेंटेज स्लिप। ओके, और इन सिंपल इंटीजर योर स्लिप विल बी इक्वल टू 1। ओके, तो दिस इज़ द मैक्सिमम पॉइंट। ओके, लेकिन जैसे ये रोटर आपका रोटेशन स्टार्ट कर लेते हैं तो उस टाइम क्या होगा, फिर आपकी जो एन एस माइनस एन वैल्यू है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि फिर एन आपका ज़ीरो नहीं होगा, एन आपका सम सॉर्ट ऑफ वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे, तो फिर आपका जो स्लिप होगा दैट्स विल बी लेस। ओके, तो नॉर्मली हमारे पास जो इंडक्शन मोटर्स होते हैं उसमें जो हमारे पास स्लिप्स होते हैं दैट इज़ 0.1% से 3% तक होते हैं। ओके, लाइक जो आपका जो डिफरेंस है, लाइक वो अप्रोच करते हैं टू दी हाई स्पीड एन एस को, सही, इतना कम होते हैं 0.1 to 3%। सही, जितना स्लिप कम होगा तो इट मीन्स के रोटर उतना अप्रोच कर रहे हैं अपने स्टेटर फीड की तरफ। ओके, ये स्टेटर फीड आपके साथ रोटेट हो रहे हैं, रोटेटिंग मैग्नेटिक फीड हो रहे हैं, तो ये रोटर भी उसी को फॉलो कर रहे हैं, स्टेटर की फीड को फॉलो करते हैं और इस तरह रोटेशन कर रहा होता है। सही है, तो जितना स्लिप कम होगा तो इट मीन्स कि आपका जो स्टेटर हैं वो रिलेटिव जो रोटर हैं वो स्टेटर की स्पीड के क्लोज हैं। अगर दोनों का स्पीड इक्वल हो जाए तो फिर आपका स्लिप जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद मेरे पास फ्रीक्वेंसी का थोड़ा सा वो जो रोटर करंट का फ्रीक्वेंसी है उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल है, योर एफ इज इक्वल टू 120 डिवाइड बाय एन पी डिवाइड बाय 120। अच्छा, यहाँ पे आपका योर एस इज इक्वल टू एन एस माइनस एन डिवाइड बाय एन एस।